Good morning, students. Myself Ashok Kumar. Today we are going to learn about our last lesson, that was gender. In that lesson, we have learned about the four types of genders. That is, first is masculine, second is feminine, third one is common, and fourth one is neuter. And every gender, we have taken some examples of every gender, every type of gender. In each or every gender, we have learned about their types, their definitions. So first of all, remind all first. First is masculine. Masculine means the noun that shows male, that called masculine. The noun that shows female, called feminine. Common, the noun that showed male and female both, that is common. And neuter, the noun that is unable to show the gender of particular word, then it called neuter. We have taken an example of boy and girl in that class. So the boy is masculine gender, girl is feminine gender, and boy and girl both called child, then it is a common gender. And the other things as like hat, buckle, dresses, all these things are called neuter type of gender. देखिए विद्यार्थी, पिछली क्लास में हमने सीखा था, जेंडर को हमने सीखना चालू किया था और हमने जेंडर की परिभाषाएं सीखी थी। इन जेंडर की परिभाषाओं में हमने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग और नपुंसकलिंग, हमने 4 प्रकार की लिंग के बारे में पढ़ा था, जिनमें हमने एग्जाम्पल्स भी लिए थे और इनकी परिभाषाएं भी सीखी थी कि जैसे जो संज्ञा हमें पुरुष होने का बोध करवाती है वो पुरुषवाचक पुल्लिंग हो गया, और जो संज्ञा हमें महिला होने का बोध करवाती है वह स्त्रीलिंग हो गई, और जो संज्ञा हमें पुरुष और स्त्री दोनों का बोध करवाते हैं वो हमारे पास, यानी पुरुष और स्त्री दोनों के लिए काम में लिए जाते हैं, वो हमारे पास कॉमन या उभय लिंग हो गए। और जो हमें किसी प्रकार के कोई भी लिंग के बारे में नहीं बता पाते वो हमारे पास क्या हो गए, वो हमारे पास नपुंसकलिंग लिंग हो गए। आज हम इससे आगे करने जा रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिया था जिसमें कि हमने बॉय और गर्ल का एग्जाम्पल लिया था कि बॉय एक पुल्लिंग है, गर्ल एक स्त्रीलिंग है। साथ में हमने इन दोनों के लिए चाइल्ड, बच्चा शब्द काम में लिया था, तो लड़के को भी हम बच्चा कहते हैं और लड़के को भी हम बच्चा कहते हैं। तो ये हमारे पास एक कॉमन नाउन हो गया। साथ ही में हमने जो एग्जाम्पल लिया था वो इनकी टोपी, बक्कल, ड्रेसेस इनका लिया था, शूज़। तो ये सब हमारे पास क्या हो गए, वो हमारे पास न्यूटर टाइप के नाउन हो गए। हमने एक एग्जाम्पल हमारी क्लास का भी लिया था कि क्लास में हमारे पास स्त्रीलिंग स्टूडेंट भी हैं, हमारे पास फेमिनाइन स्टूडेंट भी हैं, वी हैव देयर मस्कुलाइन ऑल्सो, एंड टीचर इज़ कॉमन टाइप ऑफ जेंडर, एंड बोर्ड, chalk, duster, etc. The equipments of classroom are under neuter type of gender. So let's study further. So in today's class we are going to learn about the rule and regulations of converting feminine gender to masculine gender, or we can say masculine gender to feminine gender. Rule number first, by changing the whole word.
According to rule first, there is some possibility to change the gender full, as like boy is to change in girl, brother, sister, father, mother, uncle, aunt, nephew, niece, king, queen. Look at here, all these are masculine gender and all these are feminine gender. Look deeply, the boy is totally replaced by girl, brother totally replaced by sister, king totally replaced by queen. So in this rule, under this rule, we are learning about the totally change of spellings. Next type of example is sir changed in ma'am, madam, bull in cow, horse in mare, cock, hen, dog, bitch, son, daughter. देखिए गाइस, यहाँ पे जो नियम है, इस नियम के अनुसार होता क्या है कि हमें मस्कुलाइन जो जेंडर है उस जेंडर को पूर्णतया ही रिप्लेस कर देना होता है फेमिनाइन वर्ड से। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल है, रूल है, वो रूल क्या कहता है, बाय एडिंग ESS, यानी वर्ड हमारे पास, जो स्पेलिंग हमारे पास है उनमें हमें एंड में ESS जोड़ देना है और हमारे पास फेमिनाइन वर्ड बन जाएगा। एज लाइक ऑथर, ऑथरेस, लाइन, लाइनेस, हेयर, हेरेस, पोइट, पोइटेस। But there is also a note. Nowadays we use author or poet in place of authoress and poetess। यानी आजकल हम क्या कर रहे हैं कि ऑथर और पोइट को ही हम यूज कर रहे हैं, इन्हें हम एक कॉमन जेंडर के तौर पे काम में लेने लग गए, जो कि चाहे महिला हो या पुरुष हो, दोनों के लिए ही हम काम में लेने लग गए हैं। अब देखिए, ये नियम हमारा जो अभी हमने पढ़ा, नियम सेकंड हमारा क्या कहता है कि जब हमें मस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर बनाना है तो हमें क्या करना है कि हमारे पास जो मस्कुलाइन जेंडर है उस जेंडर का एंड में हमें ESS जोड़कर हम इसे फेमिनाइन बना सकते हैं। नेक्स्ट जो रूल है, रूल क्या कहता है कि हमारे पास जो लास्ट वर्ड का जो लास्ट वोवेल है, दैट वी हैव टू एलिमिनेट द वर्ड लास्ट वोवेल एंड एड विथ ESS। यानी हमें करना क्या है कि हमारा जो, मान लीजिए कि वर्ड है, उस वर्ड का आखिरी जो वोवेल है, आखिरी जो वोवेल है उस वोवेल को हमें हटा देना है और बाकी के शब्दों को वापस लिखकर हमें ESS लगाना है और हमारा जेंडर चेंज हो जाएगा। हमारे पास जो वर्ड है उसका जेंडर चेंज हो जाएगा। जैसे कि एक्टर, एक्टर में आखिरी जो वोवेल है वो है O, तो हम क्या करते हैं कि O को हटा देते हैं और R को वापस लिखकर ESS लगा देते हैं, तो हमारे पास एक्ट्रेस फेमिनाइन वर्ड तैयार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे टाइगर है, तो टाइगर में भी E हटा दीजिए, TIGRESS हो जाएगा, टिग्रेस हो जाएगा, और ये भी हमारे पास क्या होगा, एक फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास रूल है, वो रूल क्या कहता है, नेक्स्ट रूल कहता है कि हमें
कि हमें करना क्या है। हमें करना ये है कि हमारे पास जो आखिरी वर्ड है ESS, वो हम ESS या फिर हम क्या करें कि आखिरी जो वर्ड है उन्हें एक्सचेंज करके भी हम ESS जोड़ के या SS जोड़ के या S जोड़ के भी हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे पास जेंडर को बदल सकते हैं। जैसे कि एम्परर, एम्प्रेस, EMPEROR, और एम्प्रेस का हो गया EMPRESS। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, OR भी हटा और E भी हटा और डायरेक्ट R लिख के फिर हमने ESS लगाया है। जैसे मिस्टर है, मिस्टर में हमने मिस्टर हटाया और S लगाया है। ठीक उसी प्रकार जैसे प्रिंस है, प्रिंस में हमने किया क्या है, प्रिंस में हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ SS जोड़ा है। ठीक उसी प्रकार से जैसे मास्टर है, तो मास्टर में हमने किया क्या है, मास्टर को मिस्ट्रेस में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वर्ड है वो पूर्णतः ही चेंज हो रहा है, लेकिन हमने एक ही जगह आई रखा है, बाकी का एज इट इज रख दिया है। एज इट इज भी नहीं रखा है, वहाँ पर भी हमने चेंजेस किए हैं। गॉड, गॉड को हमने डबल D के साथ ESS जोड़ के हमने गॉडेस इसे बनाया है। नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो रूल क्या कहता है, Some feminine genders are not formed as per above stated rule। यानी कुछ ऐसे यानी मस्कुलाइन जेंडर हैं या फेमिनाइन जेंडर हैं जिन्हें हम ऊपर जितने भी हमने नियम बताए हैं उन नियमों के अनुसार नहीं बदल सकते। तो अब जैसे कि यहाँ पे देखिए ब्राइड ग्रूम है, ब्राइड ग्रूम को हमने ग्रूम हटा के ब्राइड कर दिया, विडोवर में हमने ER हटा के विडो कर दिया, तो ये हमारे उन नियमों के विरुद्ध है। ठीक उसी प्रकार जैसे हीरो है, तो हीरो को हमने हेरोइन में बदल दिया, तो यहाँ पे हमारे पास वो नियमों के अपवाद भी आ चुके हैं। So as for this rule, if we are going to change masculine gender into feminine gender, then the above stated rules are not be followed here. Next rule, by way of changing former or latter part of the word। देखिए इसमें एक्चुअली में कहा क्या गया है, इसमें कहा गया है या तो हम हमारे पास जो वर्ड है, जो रूट वर्ड है, उस रूट वर्ड का हम पहले का लेटर या फिर हम उसके बाद का लेटर हम बदल कर उसे मेल से फीमेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ग्रैंड मदर है, लुक एट हियर, ग्रैंड मदर एज ए लाइक ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर इज चेंज्ड इनटू grandfather। So the root word we have taken here, that is grand we have taken here, and we have changed father into mother, peacock, then the root word is p and cock is changed into hen। Stepson, the root word is step and son changed into daughter। Next is man servant, the root word is servant and the man changed into maid। Washer man, the root word is washer and man changed into woman। So according to this rule, the suffix or the prefix can be changed।
नेक्स्ट इज masculine gender or feminine gender of a person of a pronoun are quite distinct. कहने का मतलब ये है कि masculine gender और feminine gender जो कि कुछ प्रोनाउंस में पहले से ही बदले हुए होते, जैसे he changed into she, himself, herself, his, her, him, her. These are the pronouns that have changed or that both are used as the pronoun. Now we are going to take a word list to understand all these So guys, are you ready? We are going to take some examples, other example. Look at here, grandfather, then the grandfather changed into grandmother. Man here is a plural noun and women is also plural noun. That belong to our that rule कि जो नाउन जिस प्रकार से होता है उसे उसी प्रकार से बदला जाता है. Son is to change in daughter, brother, sister, husband, wife, male, female, uncle, aunt, prince, princess, hero, heroine, washerman, washerwoman, poet, poetess, peacock, peahen, loin, lioness, nephew, niece, emperor, empress, host, hostess, lord, lady, cock, hen, lad, lass, man, woman, boy, girl, father, mother, himself, herself, king, queen, gentleman, gentle lady भी कह सकते हैं और हम इसे लेडी भी कह सकते हैं. सर, मैडम, गॉड, गॉडेस, हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, डॉग, बिच, हॉर्स, मेयर, बुल, काउ, टाइगर, टिग्रेस, मिल्कमैन, मिल्कमेड, एक्टर, एक्ट्रेस, फॉक्स, विक्शन, मास्टर, मिस्ट्रेस, डॉक्टर, लेडी डॉक्टर. Look at here, the doctor is a word that is used common for doctor. Ox, cow. These are some examples of gender. So guys, देखिए ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट वैसे कोई रूल नहीं होता है कि आप इसी नियम से इनके जेंडर बदल सकते हो. तो इन नियमों के झोल झाल में फंसने से तो अच्छा है कि हम डायरेक्टली इन्हें तैयार कर लें, क्योंकि एक बार तैयार किया हुआ हमें हमेशा तैयार रहेगा और हमारे काम आता रहेगा. आगे देखिए, कल संडे है तो आप लोगों को होमवर्क दे दिया जाए जो आपको अपनी नोटबुक में करना है. तो हमारी जो बुक है उस बुक के जेंडर वाले पार्ट में हमारे पास एक्सरसाइज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एक्सरसाइज दी गई है. इन एक्सरसाइज में हमें मेल या फीमेल हमारे पास जो जेंडर यानी मस्कुलाइन और फेमिनाइन हमें जेंडर दिए गए हैं. हमें करना क्या है, हमें 1 बाय 1 सभी के जेंडर बदलने हैं, जेंडर लिखने हैं और उन्हें याद भी करना है. जैसे हमारे पास होगा क्या कि पहली एक्सरसाइज में हमें फेमिनाइन जेंडर करने हैं, उन्हें चेंज करने हैं. तो बॉय का हो जाएगा गर्ल, गॉड का हो जाएगा गॉडेस, मिस्टर का हो जाएगा मिसेज. ठीक उसी प्रकार से सेकंड जो एक्सरसाइज है उसमें हमें पता लगाना है कि कौन मेल है और कौन फीमेल है और हमें उसे कन्वर्ट करना है. जैसे होस्टेस का हो जाएगा होस्ट, विडो का विडोवर, क्वीन का किंग, मेन सर्वेंट का
मेल मेड सर्वेंट, अंकल, आंट। ठीक इसी प्रकार से हमारे पास जो थर्ड एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज में हमें करना क्या है, हमें ब्रैकेट में वर्ड दिया गया है, एक नाउन दी गई है, हमें उस नाउन का अपोजिट यानी कि वुमेन यदि हमें दिया हुआ है तो वुमेन का हो जाता है मैन, वो हमें वहाँ पर लिखना है। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमारे पास दिया हुआ हो जैसे मेयर, तो मेयर का हो जाएगा हॉर्स। तो यही हमें इन्हें करना होगा, ये हमें इन्हें करना है। सो गाइस, आज की क्लास को हम यहीं वाइंड अप करेंगे और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इस टॉपिक के जो होमवर्क है वो आप कर लीजिएगा और संडे को या नेक्स्ट क्लास में आपसे इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ सवाल जो है एक्सरसाइज के वो हम करेंगे और देखेंगे कि क्या आपने वो आंसर सही किए हैं या नहीं किए। फिर उसके बाद हम हमारा जो अगला टॉपिक है वो टॉपिक हम लेंगे और वो है होमोफोन्स। होमोफोन्स कहा जाता है एक जैसे उच्चारित होने वाले या दिखाई देने वाले शब्दों को। तो इनके लिए तैयार रहिए क्योंकि इनसे सभी से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच for today's class.